Good morning, class 7 students. I am Arvind sir on behalf of SB Public School. Today I will discuss the different type of plant tissues. In the previous day, I explained some portion about plant tissues, different type plant tissues. Now, little bit some portion more left out regarding different type of plant tissues. So before explanation of the topic, let us discuss the question answer which I gave you as homework in my previous day. So all of you open your biology book, page number 1, lesson number 1, tissue. What is a tissue? What is a tissue? It was the first question, okay? Now, the answer is here. A tissue is a group of similar cells that perform a specific function. Next question I asked, how many types of plant tissues are there? And also name those plant tissues. So answer is here, 2 types of tissues are present. This is the answer of the first part of the question. Second part they are asking in that same second question, second part, name them. उसके नाम बताओ. The name will be, one is meristematic tissue, another is permanent tissue. Another question I asked, how plants and animals tissues are classified. Okay, here the answer is given here. Plants and animal tissues have been classified on the basis of their location and function. This will be the answer of the question just now which I told. Next one, write the important features of meristematic tissue. So all of you turn page number 2. These 3 features you have to write, 1, 2 and 3. Okay. Next one, page number 5, quick check. Question number 1A, page number 5. Yes, here, quick check. 1A, true and false. Meristematic tissues are responsible for plant growth. Answer will be true. Another question I asked, page number 11, assessment time, E question 1. E question 1. What are meristematic tissues? Where are they found in plants? Okay. So, all of you come to page number 2. Meristematic tissues made up of actively dividing cells are called meristematic tissues. Where they are found? They are present at the tips of roots, stems and branches. Okay. Now, let us start the discussion of the topics regarding different type of plant tissues. So meristematic tissues I was discussing in the previous day, up to this much absent. Here I have explained. I will start from here. Based on the location of these tissues मतलब ये सारे meristematic tissues location स्थित प्लांट के अलग अलग भागों में स्थित है, उनकी जगह अलग अलग जगह है, उसके आधार पर meristematic tissues are of the following 2 types. meristematic tissues है नीचे दिए गए 2 तरीके की. One is apical meristematic tissue. This type of tissue is responsible for increasing the length of the plant. ये जो tissue है, and tissue all of you know, many same type of tissues are found in the living organisms, whether it is plant, animals. So human beings, fishes, then all the living organisms, the tissues are there. Tissues are actually made by mixing structurally same type of cell in a group they are living, and also their function is also same. मतलब टिश्यू बनता है, हमारे शरीर में बहुत सारी सेल एक ही तरह का देखने में होता है, उनका काम भी एक ही तरह है, वे सारे एक ही तरह देखने वाले, एक ही काम करने वाले सेल एक साथ मिलके बन जाता है टिश्यू. नाउ ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो प्लांट के अंदर है, वो रेस्पॉन्सिबल, वे जिम्मेदार है किस काम के लिए? फॉर इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द प्लांट, पेड़ को बड़ा होने के लिए. तुमने देखा होगा पेड़ जब छोटा मिट्टी से निकलता है धीरे धीरे कितना बड़ा हो जाता है. सो दैट इज एक्चुअली दैट लेंथ ऑफ द प्लांट इज इंक्रीजिंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ meristematic tissues inside the plant. So it is located at the tips of the roots and shoots. इसीलिए ये जो meristematic tissue प्लांट की कहाँ पे स्थित है? एक तो जड़ के एकदम ऊपर में, और शूट मतलब
शूट मतलब जहाँ से तना निकलता है पेड़ का, उसके बाद शाखाएं निकलेगा, पत्ता निकलेगा, उसको पेड़ की, छोटे पेड़ की शूट बोलते हैं, बच्चे पेड़ की शूट बोलते हैं। और उसको रूट भी होता है। शूट क्या होता है? बच्चे वाला पेड़ धीरे धीरे मिट्टी से ऊपर निकल जाता है, धीरे धीरे उसका तना बड़ा होता है। द ब्रांचेस कम्स आउट, दे बिकम लॉन्गर इन लेंथ, द स्टेम्स ऑल्सो बिकम लॉन्गर इन लेंथ, द लीव्स कम्स आउट, they all comes out from the shoot and the root is inside the soil which slowly and slowly grows bigger and bigger in length। तो ये सारे मेरिस्टेमिक टिश्यू रहता है रूट के एकदम ऊपर में और शूट के सबसे ऊपर में। सो you see here, see this diagram, मेरिस्टेमिक tissues, see it is a stem, okay, from the shoot the stem is slowly going bigger and bigger in length, लंबा होता जा रहा धीरे धीरे, पहले यहां तक था, फिर यहां आ गया, यहां आ गया, यहां आ गया और ऊपर जाएगा। Now at the tip of this stem, at the tip of the shoot, at the tip of the stem which has came from the shoot, shoot से stem निकला यहाँ तक पहुंचा, the green part you see here, the meristematic tissues are there। मान लो यहाँ पे 10 cell का meristematic tissue है, 10 से each of the 10 cell will produce one cell, they go on dividing, they go on producing cell। 10 cell का एक tissue meristematic tissue है, 10 cell में से हर cell एक एक cell एक एक tissue they will produce, they will make। तो मतलब 10 सेल यहाँ पहले से और 10 सेल आ गया, तो वह 10 सेल कहाँ जाएगा? they will not be able to stay here, those 10 cells will go at the top of this previous 10 cell, यहाँ पे 10 सेल आ जाएगा, बड़ा हो गया। then this 10 cells again divide, they again produce one cell each, again this 10 cell से और 10 सेल निकलेगा, मेरिस्टेमिक टिश्यू का 10 सेल निकलेगा, वे कहाँ जाएगा? इसके ऊपर चला जाएगा। इस तरह क्या हो रहा है? the stem is the length of the stem, पेड़ का तना धीरे धीरे बढ़ते रहता है due to the division of the meristematic tissue which are found at the tip of the shoot, stem's shoot। same way यहाँ पे देखो, from the stem, by the side of the stem what is coming out? these are the branches, शाखाएं, पेड़ की शाखाएं। शाखाएं के यहाँ पर क्या हुआ? पत्ता लगा हुआ है। ओके, now here also meristematic tissues are there, पहले यहाँ तक था, फिर यहाँ बड़ा हो गया और बड़ा हो गया, फिर यहाँ तक बड़ा होने के बाद फिर पत्ते में मेरिस्टेमिक टिश्यू आ गया, पत्ते में मेरिस्टेमिक टिश्यू होता है। यहाँ पे मान लो 5 गो सेल है मेरिस्टेमिक टिश्यू का, 5 से 10 बन गया, 10 यहाँ पे आ जाएगा, 5 से 5 बन गया, 5 तो पहले यहाँ पे, बाकी 5 यहाँ जगह नहीं है, 5 सेल मेरिस्टेमिक टिश्यू यहाँ आ जाएगा। इस 5 से और 5 बनेगा, वो 5 सेल ऊपर आ जाएगा। इस तरह व्हाट यू सी हियर, द स्टेम, पेड़ का तना भी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते, नाउ the leaves will come produce। now you have seen that the leaves of a plant, a new leaf is very small in size, after a few days you will see the size of the leaves is becoming bigger and bigger in length and in breadth also, चौड़ाई और लंबाई में पत्ता भी धीरे धीरे बढ़ते रहता है। क्यों? वही कारण है, पत्ते में भी क्या रहता है? मेरिस्टेमिक टिश्यू का सेल रहता है, वह डिवाइड होते रहता है, होते होते पत्ते को सेल बढ़ते रहता है और पत्ता बढ़ते रहता है, लंबाई की तरफ से भी और चौड़ाई की तरफ से। नाउ लैटरल मेरिस्टेमिक टिश्यू, next is lateral meristematic tissues, मतलब these tissues are found on the plant on the side of the any part of the plant। कोई भी पार्ट, पेड़ के कोई भी भाग, तना हो या तुम्हारा पत्ते हो या तुम्हारा कोई भी हो, उनकी पेड़ की शाखाएं हो, ये सब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट है, डिफरेंट अलग अलग भाग है प्लांट का। ये अलग अलग भाग में कहाँ पाया जाता है? तने की साइड में, तने की साइड में, शाखाएं की साइड में, पत्ते की साइड में, उनकी जगह वहां पे है। द सेल प्रेजेंट इन दिस टिश्यू डिवाइड टू इंक्रीज द गर्थ और थिकनेस ऑफ द प्लांट। इसमें क्या होता है? जो साइड में रहता है, तने का साइड में, शाखाओं के साइड में, पत्ते की साइड में जो मेरिस्टेमिक टिश्यू का सेल होता है, वे भी डिवाइड करते हैं। डिवाइड करके 5 से 10 सेल बन जाएगा, 10 से और 5 बनेगा, 15 सेल, 15 से और 5 बनेगा, 20 सेल। सो द सेल गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड इन सच ए वे दैट द थिकनेस ऑफ द प्लांट इंक्रीजिंग। इसीलिए देखते हो तने जो मिट्टी से निकला जो तना, वह भी धीरे धीरे मोटा होते रहता है। शाखाएं जो निकला लंबा होने के साथ साथ शाखाएं भी, पेड़ की शाखा भी मोटा होते रहता है। पत्ते को देखते हो, पत्ते भी लंबा होते होते पत्ते भी मोटा होता रहता है चौड़ाई से। तो ये सारे जो मोटा होता रहता है, पत्ता, शाखाएं या उसकी तने, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लैटरल मेरिस्टेमिक टिश्यू ऑन द साइड ऑफ दोज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सी हियर, एज द प्लांट ग्रोज इन हाइट, पेड़ तो ऊंचा लंबा होते रहता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस एपिकल मेरिस्टेमिक टिश्यू एंड द स्टेम ऑफ द प्लांट ऑल्सो, स्टेम तो ये धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और इधर इधर चौड़ा होते जा रहा है, थिकनेस बढ़ते जा रहा है ड्यू टू द एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स इन दिस टिश्यू। देखो साइड में क्या है, ऑन द साइड ग्रीन टाइप ऑफ डायग्राम्स आर ड्रॉन हियर,
विच टाइप ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यूज आर प्रेजेंट? दे आर लैटरल मेरिस्मेटिक टिश्यूज। यहाँ पे लैटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू का सेल है, यहाँ पर भी लैटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू का सेल है। ये दोनों टिश्यू कहाँ देख रहे हो? ऑन द साइड, स्टेम का दो साइड में है, नॉट इन द सेंटर। तो दिस लैटरल टिश्यू सेल व्हाट इट विल हैपन, इट विल डिवाइड। मान लो यहाँ पे वन बिलो द अदर 10 cells of meristematic tissues are there. Each 10 cell, from each cell another 1 cell will get produced. तो ये जो निकलेगा यहाँ से, पहला सेल से निकलेगा, ये आगे बढ़ जाएगा। ये वाला ऊपर वाला सेल जो मेरिस्मेटिक टिश्यू का सेल है, वो भी एक सेल प्रोड्यूस करेगा, वो आगे रहेगा। इस तरह व्हाट विल हैपन, स्लोली एंड स्लोली द थिकनेस ऑफ द बोथ द साइड, द lateral meristematic tissue will go on dividing, and on both the side the thickness of the stem will go on increasing due to the number of cells is going on increasing by the division of the lateral meristematic cells. Okay, now permanent tissues. Now we'll discuss regarding the permanent tissues. Thigh tissue, the cell produced by meristematic tissue. ये जो सेल, नया सेल जो बन रहा है मेरिस्मेटिक टिश्यू के अंदर, जो सेल है वे बड़ा होते रहता है। बनने के बाद दे स्टार्ट ग्रोइंग बिगर इन साइज। वो सेल धीरे धीरे बड़ा होते रहता है। एंड ऑन मैच्योरिटी, जब पूरा बड़ा हो जाता है, गेट डिफरेंशिएटेड टू कैरी आउट स्पेशलाइज्ड फंक्शन। उसके बाद क्या होता है, जब पूरा बड़ा हो जाता है वे सेल, दे गेट डिफरेंशिएटेड टू कैरी आउट, अलग अलग हो जाता है सेल, जिससे वे कर सकता है अलग अलग खास तरह के अलग अलग काम। ऑलरेडी आई टोल्ड यू, सेल इज द लिविंग पार्ट। All the cells present in the living organisms are the living part of the living organism. They are actually working. हमारे शरीर के अंदर का अलग अलग सेल अलग अलग काम करता है। जो हम काम करते हैं कैसे करते हैं? सेल के द्वारा। सेल के अंदर जो काम होता है उसी से ही हम लोग डिफरेंट वर्क वी आर डूइंग। द सेल्स फॉर्म परमानेंट टिश्यूज। ये जो सेल धीरे धीरे जो निकला कहाँ से? मेरिस्मेटिक टिश्यू से। मेरिस्मेटिक टिश्यू का सेल डिवाइड होते होते छोटे छोटे और नया सेल निकला। वो छोटे छोटे नया सेल क्या होता है? बड़ा होते रहता है। साइज उसकी बड़े होते होते जब एकदम बड़ा हो जाता है मैच्योरिटी में, तब क्या होता है? वे सेल वे अलग अलग काम करने में सक्षम हो जाता है। तब वे सेल फॉर्म परमानेंट टिश्यू। तब वे सेल के क्या होता है? वे सारे सेल परमानेंट टिश्यू वाले सेल बन जाते हैं, एज दे डू नॉट डिवाइड फर्दर। क्यों इसको परमानेंट टिश्यू क्यों बोलते हैं? परमानेंट टिश्यू वाले सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि वे सब सेल उसके बाद और डिवाइड नहीं करता, वे वैसे ही रह जाता है जब वे अलग अलग काम करना शुरू करता है। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फंक्शन दे परफॉर्म, परमानेंट टिश्यूज आर ऑफ 3 टाइप्स। अब जो परमानेंट टिश्यू के सेल जो वे अलग अलग काम करते हैं, उनके काम करने के तरीके के आधार पर परमानेंट टिश्यू के वाले सेल को आर ऑफ 3 टाइप्स, 3 तरीके के होते हैं। एक होता है प्रोटेक्टिव टिश्यू, मतलब जिस टिश्यू के अंदर बहुत सारे सेल है, उसका काम क्या है? हमारा जीवित प्राणी को सुरक्षा देना। तो वे सब सेल क्या करता है? जीवित प्राणी को सुरक्षा देता है। उस तरह के सेल वाले टिश्यू को बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। और एक होता है, और एक बहुत सारे सेल वाले टिश्यू होता है सपोर्टिंग टिश्यू। ये भी तुम्हारा परमानेंट टिश्यू में आता है। ये क्या करता है? जीवित प्राणी को सहारा देता है, न गिर जाए। जैसे हम लोग खड़े हैं, वी आर स्टैंडिंग स्ट्रेट ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू सपोर्टिंग टिश्यूज विच आर प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी। हमारे शरीर के अंदर कुछ सेल होता है एक तरह देखने वाले, एक ही तरह काम करने वाले। वे क्या काम करते हैं? हमारा शरीर को सहारा देता है सीधा खड़ा होने के लिए। वे सब सेल एक साथ मिलकर बनता है सपोर्टिंग टिश्यू। वे परमानेंट टिश्यू में आता है। उन टिश्यू के अंदर सेल डिवाइड नहीं होता, वैसे ही रह जाता है। एंड कंडक्टिंग टिश्यू मतलब चालन करना, जिस टिश्यू के द्वारा हमारे शरीर के अंदर, प्लांट के शरीर के अंदर से पानी, खाद्य ऊपर से नीचे पूरे पेड़ के सारे भाग तक पहुंचा दिया जाता है इन सब सेलों से। प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिंग टिश्यू द सिंपल परमानेंट टिश्यू। ये जो प्रोटेक्टिव परमानेंट टिश्यू है और सपोर्टिंग वाला परमानेंट टिश्यू है, इनको बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, साधारण सी परमानेंट टिश्यू। एज दे आर मेड अप ऑफ सेल दैट आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर। क्योंकि इन सब जो सपोर्टिंग टिश्यू में जितने सारे सेल है एक ही तरह के देखने वाले, और जो तुम्हारे प्रोटेक्टिव वाला टिश्यू में जो सेल है, परमानेंट टिश्यू का जो सेल है प्रोटेक्टिव वाला, उसके अंदर जितनी भी सेल है, दे आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर। वे सारे सेल बनावट में भी एक ही है, सारे सेल एक ही तरह का काम करता है। द कंडक्टिंग टिश्यू, और एक जो तीसरा वाला जो कंडक्टिंग टिश्यू वाला परमानेंट टिश्यू है, इज ए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, एक जटिल वाला परमानेंट टिश्यू है। इज मेड अप ऑफ 2 और मोर टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन। इन टिश्यू के अंदर जो सेल मिलकर टिश्यू बना, इन टिश्यू के अंदर कुछ सेल थोड़ा अलग तरह का है और कुछ सेल थोड़ा अलग तरह का है देखने में, बनावट में, लेकिन बनावट में अलग होने के कारण भी वे होते हुए भी, लेकिन वे सारे सेल परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन, काम एक ही करता है। क्या काम करता है? वे खाने को
या पेड़ के अंदर खाने को, पेड़ के अंदर ये तुम्हारा मिनरल्स वाटर को ऊपर ले जाना, फिर खाना पत्ते से बनने के बाद पत्ते से पेड़ों के अलग अलग भागों में पहुंचाना, ये किसका काम होता है? कौन सी सेल का काम होता है? कंडक्टिंग टिश्यू का सेल। वो जटिल वाला किस लिए बताया गया? क्योंकि उसके अंदर सारे सेल होना चाहिए एक ही तरह, टिश्यू जब बनता है एक ही तरह बनावट वाली सेल मिलके टिश्यू बनता है जो एक ही तरह काम करता है। लेकिन इस कंडक्टिंग टिश्यू में जो सारे मिलके जो कंडक्टिंग टिश्यू का परमानेंट टिश्यू बना है, ये सारे सेल एक तरह देखने में नहीं होता, कुछ उसकी बनावट अलग है लेकिन काम एक ही करता है। Now let us discuss more in discussion regarding protective tissue. Now, okay, next protective tissue we will discuss in the next class.